Assalamualaikum students. Welcome to the facts of stats. The sampling distribution of sample proportion. The sampling distribution of sample proportion, that is p head. Expected mean of p head is equals to mu p. Mu p head, that is equals to p. P is population mean. P is population mean. And sigma square p head, that is variance, is equals to pq by n if sampling is done with replacement. If sampling is done with replacement. Okay. On the other hand, this one for without replacement. Without replacement. This is clear from previous lecture. If sampling is done without replacement, then this portion is added. Variance of proportion is equals to pq by n into n minus n over n minus 1. Let's start it. Proportion. Proportion है क्या basically जी? Population proportion क्या है? The fraction of values in a population which has a specific attribute is called पॉपुलेशन प्रपोर्शन. एक ऐसी रेशियो जिसमें जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स सस्टेन करें ऑफ सर्टेन पॉपुलेशन, उसको हम क्या कहते हैं जी? पॉपुलेशन प्रपोर्शन. ऑन द अदर हैंड, इफ अ सैम्पल प्रपोर्शन इज अ फ्रैक्शन ऑफ आइटम्स इन अ सैम्पल दैट हैज़ एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर आपके सैम्पल में वो सर्टेन एट्रीब्यूट्स हैं, वो सर्टेन एलिमेंट्स हैं जिनको आप स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पल प्रपोर्शन. ओके, सैम्पल प्रपोर्शन का फार्मूला क्या होगा? पी हेड इज इक्वल्स टू द काउंट ऑफ सक्सेस इन अ सैम्पल बाय साइज ऑफ अ सैम्पल, एक्स ओवर एन. एंड द सेम फार्मूला इफ यू रिमेंबर इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल favorable by total possible outcome is called probability. In the same way proportion में हम क्या करते हैं? सैम्पल proportion में favorable जिस एलिमेंट को हम स्टडी करना चाहते हैं डिवाइड बाय सैम्पल साइज. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल proportion. In order to estimate a population parameter P, population parameter क्या है? P. You use a sample statistic that is p head. उसके लिए अगर हम पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें सैम्पल का प्रोपोर्शन दैट इज सैम्पल स्टैटिस्टिक क्या है? p हेड. उसको हमें स्टडी आउट करना चाहिए, उसको हमें अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि होल पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता इन फ्यू केसेस. फेवरेबल आउटकम बाय टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज. सिंस द वैल्यूज ऑफ x एंड p हेड will vary with the repeated samples, both x and p head are random variables. In fact, x and p head are random variables. Provided that the population is much larger than the sample by at least 10 times, the x count will follow the binomial distribution. In fact, अगर आपका sample जो है population, आपकी population must be greater than 10 times than your sample size, तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन. सपोज there are finite population in which the proportion of a success is denoted by p and the proportion of failure is q, having some characteristics of interest. हमारी एक पॉपुलेशन है जिसमें हमने सक्सेस को डिनोट किया है p से और फेलियर को डिनोट किया है q से. Then p head be the proportion of sample having that characteristics. और हमारा p head क्या है जी? सैम्पल स्टैटिस्टिक है, जो हमने एक सैम्पल सेलेक्ट किया है जिसमें e of p head यानी कि मीन जो है दैट इज इक्वल्स टू म्यू p इज इक्वल्स टू p. This relation is true for both if the sampling is done with replacement and without replacement. और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि बोथ केसेस में
ट्रू साबित होती है आइदर सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट और द सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट। विद और विदाउट का कॉन्सेप्ट अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप सैम्पलिंग का जो प्रीवियस लेक्चर है उसको ज़रूर समझिए, उसको पूरी तरह गो थ्रू कीजिए। एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी हेड इज रिलेटेड टू द पॉपुलेशन parameter p and q through the equation. Standard error of p head is equals to sigma p head square root p into 1 minus p, that is q, over n if the sampling is done with replacement और n is very large. अगर हम sampling जो है वो with replacement से draw कर रहे हैं then standard error of p head क्या होगा, p q over n square root. On the other hand, if the sampling is done without replacement, अगर आपका विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है जी, इफ द सेलेक्टेड आइटम इज नॉट थ्रो बैक इन अ होल पॉपुलेशन बिफोर सेलेक्टिंग द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग इज विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर आप सेलेक्टेड आइटम्स को दोबारा अपने पॉपुलेशन में इंक्लूड नहीं करते और नेक्स्ट सिलेक्शन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट। उसका फार्मूला क्या होगा जी, स्क्वायर रूट पी क्यू इंटू एन माइनस n over small n into capital N minus 1, where q क्या है जी 1 minus p, and remember p plus q p plus q is equals to 1. The shape of distribution of p is normal when n is greater than 30. The value of z can be calculated from this z test, p head minus p over sigma p head. Clear जी? और sigma p head यानी कि standard error is to the square root of pq over n. Sigma head is equals to square root of pq over n. Using normal approximation for p head. Using normal approximation for p head. इसके दो बेसिक रूल ऑफ थंब हैं। फर्स्ट रूल ऑफ थंब क्या कहता है जी, इन ऑर्डर टू यूज द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ p head द पॉपुलेशन मस्ट बी एट लीस्ट 10 टाइम्स लार्ज एज अ सैंपल। फर्स्ट की पॉपुलेशन बड़ी होनी चाहिए सैंपल के साइज से, इट मीन्स कैपिटल N मस्ट बी ग्रेटर देन 10 टाइम्स ग्रेटर देन सैंपल साइज। एंड द सेकेंड रूल ऑफ थंब ये कहता है कि when we will use the normal approximation to the sampling distribution of p head for the values of n and p that satisfy n into p must be greater than or equal to 10, कि वो जो आपकी फेवरेबल आउटकम है वो ऐसा हो जाए। On the other hand side, for failure case n into q must be greater than and equal to 10. Both conditions verify होंगी, then you should apply normal approximation for proportion. अब हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है जी, और पॉपुलेशन कंसिस्ट 5 नंबर्स। कौन से नंबर्स हैं हमारे पास, 2, 5, 6, 7, 9। टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3। टेक ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3 फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विदाउट रिप्लेसमेंट एंड कंप्यूट द प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स फॉर ईच सैंपल। कि हमें इस पॉपुलेशन के लिए क्या करने हैं, तमाम सैंपल्स ड्रॉ करने हैं ऑफ साइज 3 के, और प्रोपोर्शनैलिटी क्या है जी, किस नंबर का हमने प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, ऑड नंबर्स का। तो इनमें ऑड नंबर कौन कौन से हैं जी, 5 and 7 and 9। और हमें दो प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है कि म्यू पी हेड इज इक्वल्स टू पी एंड सिग्मा स्क्वायर इनकी वेरिएंस ऑफ प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू पी क्यू ओवर एन, एंड ये वाला पोर्शन n माइनस एन ओवर n माइनस 1। दिस पोर्शन इज एडेड व्हेन सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट। सोल्यूशन हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं जी, 2, 5, 6, 7, 9। कैपिटल N पॉपुलेशन साइज दैट इज़ 5, 1, 2, 3, 4, 5, और सैम्पल साइज इनके हर सैम्पल कितने का हो, दैट इज़ 3। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैम्पल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, NCN रूल ऑफ कम्बिनेशन, NCN रूल ऑफ कम्बिनेशन, 5C3 दैट इज इक्वल्स टू 10। दिस पोर्शन यू शुड कैलकुलेट फ्रॉम कैलकुलेटर। 5C3 करेंगे तो क्या आता है 10। लेट P head represent the proportion of odd numbers in each sample। तो odd number कौन कौन से हैं हमारे पास,
इवन नंबर होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 हो, तो ऑड नंबर्स कौन से हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है? 5, 7, 9. Let's started. 2, 5, 6, 7, 9 is the main की पॉपुलेशन. हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो ये है, और हमने कितने सैंपल्स ड्रॉ करने हैं? हमारे सैंपल्स बनते हैं 5C3 दैट इज इक्वल्स टू 10. सो सैंपल नंबर 1 to 10, सबसे पहले आपने सीरियल नंबर ड्रॉ कर लेने हैं, दैट इज सैंपल नंबर, और हमने साइज रखना है 3 का, x1, x2, x3 सैंपल वैल्यूज. देन सैंपल प्रोपोर्शन कि इवन नंबर्स कितनी दफ़ा रिपीट हुए हैं. तो हम क्या फार्मूला जी हमारा? सबसे पहले 2, 5, 6, 7, 9, ये 2, 5, 2, 5, 6, 7, 9, इसी तरह से 2 नीचे आ गया और यहाँ से 2 नीचे आ गया. देन हमने 5 को कैंसिल किया, 2, 6, 7, 9, 2, 6, 7, 9, 2, 6, 9, 6 को भी कैंसिल कर दिया. देन 2, 7, 9, 7 और 9, देन 5, 6, 9, उसके बाद लास्ट है 5, 7, 9, 5, 7, 9, और जो लास्ट सैंपल ड्रॉ होता है वो क्या बनता है जी? लास्ट 3 वैल्यूज 6, 7, 9, 6, 7, 9. इस तरह से आपने विदाउट रिप्लेसमेंट के सैंपल्स ड्रॉ करने हैं. और हाउ टू ड्रॉ द सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, यू शुड वॉच आवर प्रीवियस लेक्चर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा. अब क्या करना है, इनका हमने सैंपल प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है. प्रोपोर्शन क्या जी? x/n फेवरेबल. यहाँ पे ऑड नंबर्स का हमने प्रोपोर्शन निकालना है. तो ये दोनों इवन है, तो ऑड कितना है? 1, 1/3, x/n साइज 3 है, ठीक है जी. और फेवरेबल कितना है? 2/3, क्योंकि ऑड क्या क्या है? 5 and 9. देन यहाँ पे 1/3. इन द सेम वे हमने ये सारे के सारे फेवरेबल आउटकम्स मेजर कर लिए, कहाँ कहाँ पे ऑड आ रहा है. एंड रिमेंबर, ऑड जस्ट 1 टाइम आया है इस प्रोपोर्शन में. 5, 7, 9 तीनों ऑड नंबर्स हैं, 3/3. नेक्स्ट स्लाइड में हमें क्या करना है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हेड, दैट इज सैंपल प्रोपोर्शन. सबसे पहले वो नंबर जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं वो लिखनी है. प्रीवियस स्लाइड हमारा 1/3, 2/3 एंड 3/3. 1/3, 2/3 एंड 3/3. एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, वो वैल्यूज़ कितनी दफ़ा रिपीट हुई हैं? 1/3 3 टाइम, 2/3 6 टाइम एंड 3/3 1 टाइम. इन सबको ऐड करें तो 10 आता है. ओके, और 10 ही हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स है. एफ ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू 1, यानी कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1. इन सबको ऐड कर दें तो 10/10 दैट इज इक्वल्स टू 1. पी हेड इंटू एफ ऑफ पी हेड, ये किस तरह से फाइंड आउट होगा? इस कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद दिस कॉलम. 1/3 इंटू 3/10, 1 इंटू 3 3 एंड 3 इंटू 10 30. ओके, this value is multiplied by this one. In the same way, 2/3 into 6/10, 6 to the 12 and 3 10s the 30. In the same way इन सबको ऐड कर लिया तो 18/30. P हेड का स्केयर इंटू एफ ऑफ P. P हेड का स्केयर लेना है. 1/3 का स्केयर 1/9. 1/9 इंटू प्रोबेबिलिटी 1 इंटू 3 3 एंड 9 इंटू 10 90. ओके, पी हेड क्या होता है जी? 1/3 का स्केयर 1/9, 2/3 होल का स्केयर 2 का स्केयर 4, 4 इंटू 6 24 और 3 का स्केयर 9, 9 इंटू 10 90. इस तरह सबका डिवाइजर 90 आ जाता है. इन सबको न्यूमरेटर को ऐड कर दिया जाए 36/90. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी हेड एंड इट्स मीन and variance, mu p head that is mean किसके इक्वल है जी? सिग्मा p head into f of p head. प्रीवियस स्लाइड, इस कॉलम का सम जो है वो किसके इक्वल आता है? 18/30. 18/30 दैट इज इक्वल टू 0.6. और वेरिएंस किसके इक्वल आता है? सिग्मा p हेड का स्केयर f of p हेड माइनस म्यू p होल का स्केयर, ये म्यू p है. इसी का मान से जस्ट पुट कर देंगे 18/30 होल का स्केयर दैट इज 0.36
इस फैक्टर को लेस होना है इसमें से। नाउ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन आर, हमारी पॉपुलेशन इनफैक्ट क्या है 2, 5, 6, 7, 9 और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या होता है जी x/n और x क्या है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन p, वो क्या है जी प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर। ऑड क्या क्या है 5, 7 एंड 9, 5, 7, 9 3/5 दैट इज 0.6 और q क्या होगा 1 minus p दैट इज 0.40। By putting the values in sigma square p head is equals to pq/n into capital N, that is population size, minus small n sample size, over capital N minus 1. By putting the values in this formula we get 0.040. Verification. Mu p is equals to p, that is equals to 0.6040. Another numerical, draw all possible samples of letter 2 each with replacement from the word new, NEW. हमने साइज 2 के सैंपल्स ड्रॉ कर रहे हैं जबकि हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है NEW, न्यू। फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ लेटर E in each sample, making the sampling distribution of proportion obtained in part B and verify these two results. And verify these two properties. Let's start it. Solution. The number of possible samples with replacement n raised power n, 3 का square that is 9. तो population क्या है NEW x1. Possible number of samples कितने हैं जी 9 divided by capital N, 3, 9/3 3, x1 की वैल्यूज 3 मतलब हर डिजिट या हर लेटर 3 टाइम्स रिपीट होगा। x2 में 3/3 दैट इज 1। Let P head represent the proportion of letter E in each sample. P head क्या represent कर रहा है proportion of E in each sample. The number of possible samples with replacement. x1 क्या आता है जी हमारे पास 3 एंड x2 आता है हमारे पास 1। ओके, x2 क्या आता है हमारे पास 1। पॉपुलेशन क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन है जी NEW और इसके 3 लेटर्स हैं N 3 टाइम, E 3 टाइम एंड W 3 टाइम। x1 की सारी वैल्यूज आ गई। देन x2 के लिए NEW हर लेटर जो है वो 1 टाइम आएगा NEW। नाउ प्रोपोर्शन ऑफ E, इस सैंपल में कोई E नहीं है तो मीन 0/2, यहाँ पे 1 है तो 1/2, अगेन कोई E लेटर नहीं है इस सैंपल में तो 0/2। इन द सेम वे हमने इनको राइट डाउन कर लिया। तमाम 9 सैंपल्स का प्रोपोर्शन मीन सैंपल प्रोपोर्शन P हेड फाइंड आउट कर लिया। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P हेड इज इक्वल्स टू 3 लेटर्स हैं हमारे पास P हेड के। P हेड इज इक्वल्स टू 0/2, 1/2 एंड 2/2, जबकि फ्रीक्वेंसी क्या आती है 4, 4, 1। इन सबको सम कर लिया जाए तो 9। हमारा टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स भी 9 थे। एफ ऑफ पी प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1। 4/9, 4/9, 1/9, इन सबको ऐड कर लिया जाए तो 9/9 दैट इज इक्वल टू 1। पी हेड इंटू एफ ऑफ पी, दिस कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय दिस वन। फर्स्ट 0/18, 0 into 4 0 and 9 2s are 18, again 1 into 4 4 and 9 2s are 18, 4/18 and last one 2 1s are 2 and 9 2s are 18, 2/18। इन सबको ऐड कर लें तो हमारा म्यू आ जाता है। म्यू पी हेड 6/18 और वेरिएंस पी हेड का स्केयर इंटू एफ ऑफ पी हेड। Sampling distribution of P head, its mean and variance. Mu P sigma P head into F of P head 6/18, that is 0.333, and its variance sigma square P head sigma P head का square into F of P minus mu P head whole का square. This is also equal to mu P head. Okay, by putting the values 8/36
माइनस 0.33 होल का स्केयर, सिग्मा स्केयर पी हेड क्या आ जाता है 0.111। देन मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन आर, हमारी पॉपुलेशन क्या थी 3 लेटर वर्ड NEW। अब इसमें जो प्रोपोर्शन ऑफ E है वो क्या है जी 1 लेटर है जस्ट E, तो 1/3 दैट इज P 0.33 और Q क्या होगा 1 माइनस P 0.66। सिग्मा स्केयर P हेड इज इक्वल टू PQ over N when sampling is done with replacement। remember sampling is done with replacement then just ये वेरिएंस आता है। ओके, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फार्मूला सिग्मा स्केयर P हेड इज इक्वल टू 0.111। नाउ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या है जी कि सैंपल का मीन और पॉपुलेशन का मीन सेम आ गया, दैट इज 0.33। इन द सेम वे वेरिएंस ऑफ सैंपल and variance of population is equals to, if sampling is done without replacement then variance of P1 head minus P2 head is P1 and P2, E of P1 head minus P2 head is equals to P1 minus P2, that is difference between the population's proportion if sampling is done without replacement then variance of P1 head minus P2 head is equals to P1 Q1 over N1 into N1 minus N1 over N1 minus 1 प्लस P2 इंटू Q2 ओवर N2, डिफरेंस नहीं होगा। लेट स्टार्टेड, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जी, लेट P1 हेड रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स इन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फाइनाइट पॉपुलेशन 469, जबकि सेकेंड जो पॉपुलेशन है उसमें BP2 हेड जो है वो प्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर्स, साइज अगेन 2 है और पॉपुलेशन क्या है 235 और हमें फॉर्म क्या करना है, फॉर्म सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन of P1 head minus P2 head, E of P1 head minus P2 head is equals to P1 minus P2 and second property for without replacement, ये साबित करना है हमें। सोल्यूशन, हमने पैरेलल ले ली दोनों पॉपुलेशंस 469 235, दोनों में कैपिटल N सेम है 3 और स्मॉल n भी 2 सेम है। फॉर्मूला नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट NCN या NCN1, दोनों में N1 N1 3C2 3 in the same way 3C2 3। number of samples from population 1 and population 2, population 1 क्या जी 469, हमारे सैंपल्स बनते कितने हैं, 3 सैंपल्स बनेंगे इन दोनों से 1 2 3 1 2 3, पहले सैंपल्स ड्रॉ कर लिए हमने सैंपल नंबर्स यानी या सीरियल नंबर, उसके बाद x1 and x2 in the same way x1 and x2 469 यहाँ पे 4 एंड रिमेंबर कि लास्ट अगर साइज 2 होगा तो लास्ट 2 वैल्यूज बिकम लास्ट सैंपल साइज, अगर साइज 3 हो तो लास्ट 3 वैल्यूज बिकम लास्ट सैंपल। अब यहाँ पे 69 लास्ट सैंपल बन गया, इनमें प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर्स, यहाँ पे 2 इवन है तो 2/2, यहाँ पे 1 है तो 1/2, यहाँ पे 1 है अगेन 1/2, इन द सेम वे 2 3 5 और लास्ट में क्या है 3 5, इन द सेम वे यहाँ पे 3 and 5, प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर यहाँ पे 1/2 1/2 एंड 0/2 दैट इज 0। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस मेजर करना है बिटवीन फर्स्ट प्रोपोर्शन sample proportion and second sample proportion, P1 head and P2 head, P1 head को यहाँ लिखना है और P2 head को यहाँ लिखना है, 3 into 3 9 डिफरेंस बनेंगे। अब ये वैल्यूज कैसे आई, P1 हेड में क्या आता है जी 1.5.5 1.5.5, जबकि P2 में क्या आता है 0.5.5 एंड 0। D किसके इक्वल है, P1 माइनस P2, 1 माइनस 0.5 0.5, 1 minus 0.5 0.5, 1 minus 0 1, 0.5 minus 0.5 0 0 and 0.5 minus 0 that is 0.5। okay, in the same way this one, और यही 9 डिफरेंस से हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे D की। D किसके इक्वल है, P1 हेड माइनस P2 हेड, 3 मेन डिजिट्स हैं उसके मोस्ट रिपीटेड 0.51 और 0 कितनी दफ़ा आया 4 टाइम, 0.5 कितनी दफ़ा आया 4 टाइम एंड 1 इज 1 टाइम,
इन सबको ऐड कर लिया 9 एफ ऑफ डी, इनकी प्रोबेबिलिटी 4/9, 4/9, 1/9, इन सबको ऐड करें 9/9, दैट इज इक्वल टू 1 एंड प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1. मीन d into f of d, this one multiplied by this one, 0 into 4/9, 0, 0.5 into 4/9, 2/9, 1 into 1/9, 1/9, इन सबको सम कर लिया 3/9, दैट इज मीन. एंड वेरिएंस d का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ डी, इसका स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, 0 इंटू 4/9, 0, 0.5 इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 4/9, 1/9 एंड अगेन 1/9, इसका सम 2/9. द मीन एंड वेरिएंस ऑफ P1 हेड माइनस P2 हेड, 3/9 इज अ मीन, और वेरिएंस क्या आएगा सिग्मा डी स्क्वायर एफ ऑफ डी माइनस म्यू डी, म्यू जी हम इसको कहेंगे सिग्मा डी इंटू एफ ऑफ डी मूल का स्क्वायर. ये किसके इक्वल आ रहा है 2/9 माइनस 1/9, इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 1/9 आता है, तो वेरिएंस कितना आ गया 1/9. नाउ वेरिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, हमारी फर्स्ट पॉपुलेशन की वैल्यूज थी 469, P1 आ गया, इसमें दो इवन है तो 2/3, Q1 क्या आता है 1 माइनस P1, 1 माइनस 2/3 क्या आता है 1/3. इन द सेम वे फॉर सेकेंड पॉपुलेशन P2 x2 by n2, 1/3, क्योंकि इसमें इवन एक ही है दैट इज 2, और Q2 क्या बनेगा 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3. E of P1 माइनस P2 हेड इज इक्वल टू P1 माइनस P2. P1 कितना आता है जी 2/3 और P2 कितना आता है 1/3, इन दोनों का डिफरेंस 1/3. नाउ वेरिएंस के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सारा हमारा जो सिनेरियो है केस विदाउट रिप्लेसमेंट का है, तो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P1, Q1, P2, Q2 इस फार्मूले में पुट आउट करेंगे तो ये क्या आता है 1/9. सो हैंस प्रूव दैट कि मीन और वेरिएंस सैंपल के और पॉपुलेशन के उनके डिफरेंसेस के साथ किसके इक्वल आते हैं, मीन आता है 1/3 एंड पॉपुलेशन का जो डिफरेंस है और सैंपल का डिफरेंस 1/9 आता है. अनदर न्यूमेरिकल, एक ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें सारी कैलकुलेशंस आपको ऑलरेडी गिवन होती हैं एंड यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट फाइंड P1 हेड माइनस P2 हेड एंड वेरिएंस ऑफ P1 हेड माइनस P2 हेड इफ द समथिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. में तमाम बेसिक इन्फो गिवन है. सोल्यूशन N1 6 है, N2 सॉरी 3/6 0.5 और Q1 क्या आता है 1 माइनस 0.5 दैट इज 0.5, N2 x2 2 और P2 क्या आता है x2/N2 0.4 और Q2 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6. When the sampling is done with replacement, E of P1 head minus P2, P1 minus P2, 0.5 minus 0.4, 0.1 आ जाता है. और ये केस विद रिप्लेसमेंट के लिए तो इसमें वो फैक्टर ऐड अप नहीं होगा. ठीक है, जस्ट बेसिक इन्फो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. इफ सैम्पलिंग इज डन विद रिप्लेसमेंट क्या आता है 0.2033. ऑन द अदर हैंड इफ द सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट देन मीन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगेन 0.1 आ रहा है, जबकि वेरिएंस पे इम्पैक्ट आएगा N1 माइनस N1 ओवर N1 माइनस 1. ये सारी वैल्यूज पुट आउट कर दी तो ये क्या आता है 0.14. ठीक है, इफ द समथिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट देन दिस पोर्शन इज एडेड इन बोथ सिनेरियोज. If you have any query, you can email me at this ID. Thanks for watching and Allah Hafiz.